Okay, let's begin with the all important section for our attempt. 115 BAC amended to a great extent as per Finance Act 2023, and the nature of amendment is such that we are expecting that 115 BAC will be 100% part of your paper, whether it will be part of a descriptive question, whether it will be part of MCQs, whether it will be part of both. Yes, that is for the question paper to arrive, and then we'll all come to know. But yes, 115 BAC is definitely going to be part of your question paper. Up to last year, that means up to previous year 22-23, 115 BAC was optional. Now the amendment that they have come up is that 115 BAC is now the default tax regime. By default, 115 BAC will apply. So if nothing is mentioned in the question, you should be actually applying the provisions of section 115 BAC and calculate your total income. The question computation of total income, if it is asking you total income, whether it is asking you with tax liability or without tax liability, I would say that because 115 BAC section is the default tax regime, if the question is silent, follow the default tax regime and do your computation. Up to last year, so that's the first amendment कि जो 115 BAC optional था वो अब default बन गया. Second amendment, in this same section, last year तक individuals and HUF only two of them were covered. But now even others are covered. ये others का मतलब क्या होता है सर? AOP, a BOI, a artificial juridical person, cooperative societies are not covered. So the section which was only restricted to individual HUF now covers AOP, BOI and artificial juridical person also. Like it was last year, even in the current year, 115 BAC does not make any differentiation or distinction about your residential status, about your age. As per Finance Act, so what we now call as opt-out regime, there are three slab rates that you have: 0 to 3 lakhs, 0 to 5 lakhs, 0 to 2,50,000. अगर आप रेजिडेंट हो और सीनियर सिटीजन हो तो 0 to 3 lakhs वाला एग्जेम्पशन लिमिट लगेगा. रेजिडेंट तो ओके वी नो, बट सीनियर सिटीजन मतलब 60 years और मोर बट लेस देन 80 years. अगर आप रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 0 to 5 lakh वाला स्लैब लगेगा. सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 years और मोर. एंड इफ यू आर नॉट एनी वन ऑफ दीज टू, मतलब यू आर बिलो 60 years ऑफ एज, यू आर अ नॉन रेजिडेंट, तो तुम्हारा 0 to 2,50,000 वाला बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला जो स्लैब है वो लगेगा. सो एज पर द बजट देर आर 3 slabs. 115 BAC डज नॉट हैव 3 slab rates, इट हैज अ सिंगल स्लैब रेट, मतलब एक ही स्लैब है पूरा. रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सीनियर, सुपर सीनियर, बिलो 60 years कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीबडी इज कवर्ड. द स्लैब्स हैव ऑल्सो चेंज्ड. पहले स्लैब 2.5 लाख का था, अब वो स्लैब चेंज हो गया है. So focusing on what is currently existing, each slab is of 3 lakh rupees and the percentage keeps on increasing by 5%. So when you do your tax calculations, 0, 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, मतलब अगर आप इतना टोटल कर लेते हो तो your tax works out to 1,50,000. Why is this important to remember? Up to an income of 15 lakh rupees, your tax liability becomes 1,50,000. So अगर MCQ में क्वेश्चन कुछ ऐसा आया कि the total income as per 115 BAC is, let us say for example 21 lakh rupees, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा. एक्स्ट्रा जो 6 lakhs है 15 लाख के ऊपर, उस पर 30% अप्लाई कर दो, that becomes 1,80,000 and 15 लाख पर तो 1,50,000 का टैक्स लगता है. सो योर बेसिक टैक्स वर्क्स आउट टू 3,30,000. अब इस पे सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस जो भी अप्लाई होता है वो अप्लाई कर लो. ऑब्वियसली सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा. 21 lakhs की मेरी टोटल इनकम है, हेल्थ एजुकेशन सेस 4%. सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस, 15 लाख रुपए तक की इनकम पे 1,50,000 का तुम्हारा बेसिक टैक्स आता है. द कॉरस्पॉन्ड देयर इज अनदर अमेंडमेंट इन रिबेट ऑल्सो. पुराना प्रोविजन, ऑप्ट आउट वाला प्रोविजन क्या था कि इफ योर टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीस तो मैक्सिमम 12,500 का रिबेट मिलता था. इफ द टोटल इनकम वाज ग्रेटर देन 5 lakhs तो देयर वाज नो रिबेट, बेसिक टैक्स पूरा भरना पड़ता था. नाउ इफ यू पे टैक्स एज पर द डिफॉल्ट रेजिम, तो पहला अमेंडमेंट स्लैब रेट ही अलग हो गए, सो नेचुरली थ्रेशोल्ड भी चेंज होगा. इफ द टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 7 lakh rupees,
Then your amount of basic tax or maximum 25,000 whichever is less. Since we are revising stuff with reference to the entire syllabus, मैं ये लिख लेता हूं, ये जो अपना बेसिक टैक्स है ना, इसमें टैक्स दैट यू पे अंडर सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT is paid at the time of purchase and sale both. This tax is not eligible for rebate, so this tax has to be excluded. बाकी सारे टैक्सेस इंक्लूड कर लो, स्लैब रेट वाला टैक्स भी कवर कर लो, विनिंग्स वाला 30% भी कवर कर लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 उस टैक्स के सामने भी रिबेट मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A उस टैक्स के सामने भी रिबेट मिलेगा। बस ये 112A वाला जो टैक्स है उस टैक्स के सामने रिबेट नहीं मिलता, ऐसा तो 112A में ही लिखा है। सो इफ आई एम फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, हाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 112A के टैक्स के सामने रिबेट नहीं मिलता, ये ऑप्ट आउट रेजिम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली एप्लीकेबल है। सो कमिंग बैक टू द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, इफ आई एम पेइंग टैक्स एज पर द डिफॉल्ट रेजिम, बेसिक टैक्स और मैक्सिमम 25,000 विच एवर इज लेस इज द अमाउंट ऑफ द रिबेट दैट आई एम गेटिंग। अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपीज के ऊपर जाती है, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जाती है, तो मुझे रिबेट मिलता है। हाउ इज माई रिबेट कैलकुलेटेड? कैलकुलेट द टैक्स ऑन टोटल इनकम। मेरी टोटल इनकम 7 लाख रुपीज के ऊपर है, 7,10,000, 7,12,000, 7,20,000, उस पर कितना टैक्स आता है स्लैब रेट के हिसाब से वो टैक्स गिन लो। देन फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। मतलब अगर इसको फॉर्मूला के तौर पे फिटअप करना हो ना, तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, फाइंड आउट द टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड दिस टोटल इनकम इज हाउ मच? दिस टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 7 लाख रुपीज। ये मेरी फर्स्ट अमाउंट। फाइंड आउट द एक्स्ट्रा इनकम। सर एक्स्ट्रा इनकम का मतलब तुम्हारी जो टोटल इनकम है उसमें से 7 लाख लेस करो। 7 लाख के ऊपर तुमने कितना कमाया, वो बी अमाउंट। अगर तुम्हारा ए इज ग्रेटर देन बी तो तुम्हें रिबेट मिलेगा ए माइनस बी। लेकिन बाई चांस इफ द अमाउंट ऑफ ए इज लेस देन बी, तो भाई तुम्हें कोई रिबेट नहीं मिलने वाला, पूरा पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक याद रखना हो तो ऐसा याद कर लो, 7 लाख रुपीस के ऊपर अगर तुमने इनकम कमाया, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा कमाया, तो जो टैक्स भर रहे हो वो उस एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस रिबेट ले लो। अगर जो टैक्स भर रहे हो वो एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा है, तो वो दो अमाउंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उतना रिबेट मिलेगा। जो टैक्स भर रहे हो वो अगर इनकम से कम है, मतलब इनकम तुम्हारी ज्यादा है, टैक्स लायबिलिटी कम आता है, तो भाई कोई रिबेट नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास सफिशिएंट इनकम है तो तुम पूरा टैक्स भरो। फ्रॉम एन एमसीक्यू परस्पेक्टिव याद रखना हो तो ये याद रख लेना कि 7,27,000 ऑड अमाउंट ऑफ इनकम, 7,27,480 या 680 जैसा कोई अमाउंट है, वहां तक तुम्हारा रिबेट अवेलेबल है। जैसे ही तुम्हारी इनकम 728, 7,29,000, 7,30,000 होने लगी, तो तुम्हारी इनकम ज्यादा होने लगी, तो रिबेट नहीं मिलेगा। दिस विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ हिंट इन योर माइंड। क्वेश्चन में अगर आया कि द पर्सन इज अर्निंग एन इनकम ऑफ 7,22,000, तो तुरंत दिमाग में ये ट्यूबलाइट होनी चाहिए कि भाई 7 लाख के ऊपर है लेकिन रिबेट मिलेगा। तो ये 7,27,000 का एक अमाउंट अपने दिमाग में बिठा के रखना। नेक्स्ट अमेंडमेंट रिलेटिंग टू 115 BAC, 37% का जो सरचार्ज लगता था इफ द इनकम इज ग्रेटर देन 2 करोड़ बट लेस देन इक्वल टू 5 करोड़, तो 25% सरचार्ज था। बट इफ द इनकम इज ग्रेटर देन 5 करोड़ तो 37% का सरचार्ज था। अब ये जो सरचार्ज था ना आपका, ये ऑप्ट आउट रेजिम में है। इन द डिफॉल्ट रेजिम उन लोगों ने 37% डिलीट कर दिया है, मतलब 37% की जगह पे 25% ही लगने वाला है इन द डिफॉल्ट रेजिम 115 BAC। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स, तुम अगर समझो जैसे ही तुम्हारी इनकम 2 करोड़ क्रॉस हुई, तो द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अगर तुम पे कर रहे हो तो तुम्हारा सरचार्ज रेट इज गोइंग टू बी 25% ओनली, 37% लगने ही नहीं वाला। फॉलोइंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अलाउड। ये लिस्ट में एक हल्का सा चेंज हुआ है, बाकी दिस लिस्ट इज एब्सोल्युटली सेम द वे इट वाज लास्ट ईयर। तुम 115 BAC में जो टोटल इनकम गिनोगे दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द हायर साइड, क्योंकि बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं मिलने वाले।
सैलरीज के चैप्टर में ये जो पहले 3 एग्जेम्पशन है, ये एग्जेम्पशन तुम्हें नहीं मिलते। हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन का जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो पूरा टैक्सेबल होगा। सेक्शन 1014 के स्पेशल अलाउंसेस, सेक्शन 1014 तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था, सब क्लॉज नंबर 1, सब क्लॉज नंबर 2। सब क्लॉज नंबर 1 ऑफिशियल अलाउंसेस थे, सब क्लॉज नंबर 2 पर्सनल अलाउंसेस थे, जिसमें तुम्हें रूल 2BB के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलता था। लेकिन अब अगर डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स पे करने की कोशिश कर रहे हो तो 1014 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन ये 4 अलाउंसेस जो है उनका एग्जेम्पशन विल बी अलाउड। ये 4 के लिए गवर्नमेंट ने तुम्हें एग्जेम्पशन दिया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस। बाकी जितने भी अलाउंस हुए, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ये सारे बाकी के जितने भी अलाउंसेस है तुम्हारे, अगर वो तुम्हें मिले हैं और तुम 115 BAC डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स पे करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सारे अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको जो डेली अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एग्जेम्पशन 1017 में था, वो एग्जेम्पशन अभी नहीं मिलेगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो MP और MLA डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स पे कर रहे हैं। अगर माइनर की इनकम क्लब कर रहे हो तो 1500 रुपीज पर माइनर चाइल्ड मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता था, लेकिन वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन अब नहीं मिलेगा। मतलब माइनर का इनकम क्लब जरूर होगा, 64(1)(a) क्लबिंग का सेक्शन तो अप्लाई होगा, लेकिन जो पेरेंट को एग्जेम्पशन मिलता था 1500 रुपए का, बहुत ही चिंदी सा छोटा सा एग्जेम्पशन था, वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो तो आपको 10AA के हिसाब से प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन मिलता था। पहले 5 साल के लिए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, अगले 5 साल के लिए 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, एंड लास्ट वाले 5 ईयर्स के लिए ईयर नंबर 11 टू ईयर नंबर 15 अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ रिजर्व अकाउंट, द अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट, और 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स विच एवर इज लेस, इतना डिडक्शन मिलता है तुमको। ये डिडक्शन अब तुम्हें नहीं मिलेगा। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करके, गुड्स एक्सपोर्ट करके जो प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट पे पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब कोई 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। द अमेंडमेंट इन 115BAA सॉरी द अमेंडमेंट इन 115BAC लास्ट ईयर तक पूरा सेक्शन 16 का डिडक्शन अवेलेबल नहीं हुआ करता था। अब इन लोगों ने अमेंडमेंट करके बोला कि देखो भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपए वाला, वो डिडक्शन हम अलाउ कर देंगे इवन टू एन एम्प्लॉई पेइंग टैक्स अंडर द डिफॉल्ट रेजिम। एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन डिफॉल्ट रेजिम वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट हाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन अब अवेलेबल हो जाएगा। 24B मतलब दिस टॉक्स अबाउट हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जिसमें या तो मैक्सिमम 30,000 रुपीज या तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का डिडक्शन तुम्हें मिलता है, वो ऑप्ट आउट रेजिम में मिलते रहेगा। लेकिन अब डिफॉल्ट रेजिम में ये डिडक्शन तुम्हें नहीं मिलने वाला। मतलब इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तुम बोलोगे NAV 0 माइनस डिडक्शन अंडर 24B नॉट अलाउड, मतलब द टैक्सेबल अमाउंट इज गोइंग टू बी 0। हाँ, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ SOP के लिए है, मतलब LOP और DLOP का जो इंटरेस्ट है वो तो अभी भी डिडक्शन मिलेगा। सिमिलरली नाउ कमिंग टू द चैप्टर ऑफ PGBP, एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। पावर सेक्टर को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता था अगर वो लोग नॉर्मल डिप्रिसिएशन WDV बेसिस पे क्लेम करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, बट अगर ये लोग 115BAC के हिसाब से टैक्स पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली नॉर्मल डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड, एडिशनल डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च के लिए आप आउटसाइडर्स को कंट्रीब्यूशन करते हो, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक ऐसा इंडियन कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च है। जस्ट अ सेकेंड, एक ऐसी इंडियन कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक रिसर्च है। सोशल साइंस रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए तुम कंट्रीब्यूशन करते हो। नेशनल लेबोरेटरी, IIT को कंट्रीब्यूशन करते हो। बाहर वालों को जो कंट्रीब्यूशन करते हो साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। अगर
खुद ही साइंटिफिक रिसर्च करके रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर कर रहे थे, कैपिटल एक्सपेंस इनकर कर रहे थे, उसका डिडक्शन जैसे मिलता है वैसे मिलते रहेगा। द रिस्ट्रिक्शन पुट इज ओनली व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू आउटसाइडर्स, अब उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। 35 AD कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। देयर आर 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस दैट यू हैव। उनके लिए जो भी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट है, वो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट तुम 100% डिडक्शन लेते थे। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज अलाउड एज अ डिडक्शन। अब वो 100% डिडक्शन नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है, उसको आप 100% राइट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट में डाल के उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। बट डेप्रिसिएशन में भी रिस्ट्रिक्शन था कि भाई ओनली नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, एलिजिबल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन देते हो तो उसका डिडक्शन जनरली मिलता है, लेकिन अब नहीं मिलेगा। इफ यू मेक एन ऑब्जर्वेशन, इसके बाद है ATC टू ATU वाला पॉइंट। नाउ वी ऑल नो कि ATC टू ATU चैप्टर 6 से तुम्हारा डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होता, बट देन हाँ 3 डिडक्शन तुम्हें अलाउ हो जाते हैं। ATCCD 2 एम्प्लॉयर अगर तुम्हारे पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसका डिडक्शन तुम्हें मिल जाता है मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है उसका मैक्सिमम 14% ऑफ सैलरी। तो ये डिडक्शन कंटिन्यू होगा। ATJJA नए वर्कर्स को एम्प्लॉय किया तो 30% ऑफ देयर सैलरी विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन टू यू। एंड ATCCH जो अमेंडमेंट आया है कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर वो इंडिविजुअल खुद कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो ATCCH सबसेक्शन 1 में डिडक्शन मिलेगा। डिफॉल्ट रेजिम में सबसेक्शन 1 का बात नहीं किया है, इन लोगों ने सबसेक्शन 2 का बात किया है। एज पर दिस सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसको सबसे पहले सैलरी की इनकम माननी है एंड देन वो अमाउंट का पूरा डिडक्शन मिल जाता है आपको। वो डिफॉल्ट रेजिम में भी अलाउड है। सो अदर देन दीज 3 डिडक्शंस ATC टू ATU का कोई डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। वन इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व इज नंबर 1, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज और देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं होगा। डिफॉल्ट रेजिम में टैक्स पे कर रहे हो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जैसे अलाउ होता है वैसे अलाउ होगा। कैपिटल गेन्स के एंडिंग में जो सेक्शन 54 सीरीज वाले एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन भी मिल जाएंगे। कैपिटल गेन्स के पूरे चैप्टर को इन्होंने टच ही नहीं किया है। सिमिलरली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी देयर इज नो चेंज इन द कंप्यूटेशन, नो रिस्ट्रिक्शन। IFRS कैलकुलेशन जैसे करते हो वैसे ही कंटिन्यू करोगे। हाँ, द थिंग टू रिमेंबर, मैंने कहीं पे नोट्स में इंक्लूड भी किया होगा, हाँ एकदम लास्ट में, एनी इनकम दैट इज टैक्सेबल एज पर अ स्पेशल टैक्स रेट शैल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड एज पर दैट स्पेशल टैक्स रेट ओनली। क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पे 30%, लॉटरी विनिंग्स गैम्बलिंग बेटिंग पे 30%, 111A 15%, 112A 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 20% विथ इंडेक्सेशन। सारे स्पेशल टैक्स रेट्स जैसे है वैसे ही रहेंगे। डिफॉल्ट रेजिम इज ओनली चेंजिंग योर स्लैब रेट्स, इट इज नॉट चेंजिंग योर स्पेशल टैक्स रेट्स। ओके, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू पे अटेंशन टू। ये जो टेबल मैंने बनाया ना, ये टेबल में आपको बोला कि ये वाले डिडक्शंस, ये वाले एग्जेम्पशंस आपको करंट ईयर में अलाउ नहीं होंगे, लेकिन पुराने सालों में आपने वो डिडक्शंस लिए थे। 35 AD का डिडक्शन लिया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लिया था, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन लिया था, SOP के इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया था। उसकी वजह से अगर कोई लॉस आया था जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो डेप्रिसिएशन है वो अनएब्जॉर्ब्ड है इसलिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो नाउ व्हेन यू ब्रिंग इट फॉरवर्ड इन द करंट ईयर 23-24 एंड इन दिस ईयर यू आर पेइंग टैक्स एज पर द डिफॉल्ट रेजिम, तो वो वाला लॉस, वो वाला अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होगा, वो लॉस तुम्हारा लैप्स हो जाएगा। 2 साल पहले स्पेसिफाइड बिजनेस का डिडक्शन लिया था और लॉस आया था, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, आज वो लॉस तुम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 1-2 साल पहले अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था,
अब उस अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन में थोड़ा डेप्रीसिएशन अनएब्जॉर्ब था नॉर्मल डेप्रीसिएशन, थोड़ा डेप्रीसिएशन अनएब्जॉर्ब था एडिशनल डेप्रीसिएशन। मतलब ये जो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है ना, इसको बिंदास कैरी फॉरवर्ड करो, इसको बिंदास सेट ऑफ करो, लेकिन जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है ये अब आगे कैरी फॉरवर्ड, ये अब आगे सेट ऑफ नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कोई लॉस आता है तो उस लॉस को किसी और हेड के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन करंट ईयर में ही डाल दिया। मतलब टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू, देखो करंट ईयर में एसओपी में तो लॉस पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि डिडक्शन ही नहीं मिलता। अगर एलओपी या डीएलओपी में लॉस हुआ तो उसको अदर हेड्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मतलब वो जो 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ करने वाला प्रोविजन था ना, वो बेनिफिट भी गया, वो पूरा लॉस सीधा कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर पास्ट ईयर्स का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है तो एसओपी का अगर है तो वो लॉस तो लैप्स हो जाएगा, वो तो हमने अभी पढ़ा कि एसओपी का तो कोई डिडक्शन अभी मिलता नहीं है तो पुराना वाला लॉस भी लैप्स हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब एलओपी या डीएलओपी का जो पुराना वाला लॉस है पुराने सालों का वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो सेट ऑफ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर एनी अलाउंस और एनी परक्विजिट प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को अलग लॉ अलग कानून के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वो एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अगर तुम चाहो तो डिफॉल्ट अप्लाई ना करके डिफॉल्ट से बाहर आ सकते हो, ऑप्ट आउट कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर द एप्लीकेबल ड्यू डेट। मतलब बिलेटेड रिटर्न वाला ऑप्शन यहां पे यूज नहीं कर सकते। अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया तो बाय डिफॉल्ट रेजिम लग जाएगा, ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास पीजीबीपी इनकम है तो एक बार तुमने ऑप्ट आउट कर दिया तो उस ईयर के लिए और फ्यूचर ईयर के लिए डिफॉल्ट रेजिम नहीं लग सकता। मतलब अभी हर साल बजट के हिसाब से टैक्स पे करते रहो। देन फ्यूचर में कभी भी चाहो तो अपना ये ऑप्ट आउट वाला चीज विड्रॉ कर सकते हो और वापस डिफॉल्ट रेजिम में आ सकते हो, लेकिन वो एक ही बार कर सकते हो तुम। तो तुमने ऑप्ट आउट वाला चीज चूज किया, देन एवरी ईयर ऑप्ट आउट के हिसाब से टैक्स पे करो। लाइफ में एक बार ऑप्ट आउट वाला जो ऑप्शन दिया था उसको विड्रॉ करके वापस डिफॉल्ट में आ सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। और एक बार वापस आ गई डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट रेजिम विल अप्लाई टू दैट ईयर एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स। हाँ, एक बार वो असेसी जो बिजनेस कर रहा था उसने बिजनेस बंद कर दिया तो वो अब ये दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा कैटेगरी क्या है बेटा? एक ऐसा असेसी जो पीजीबीपी इनकम नहीं कमाता, जो हाउस प्रॉपर्टी कमाता है, सैलरी इनकम कमाता है, कैपिटल गेन्स होता है, आईएफओएस होता है, लेकिन पीजीबीपी नहीं करता। इस टाइप के असेसी के पास हर साल ये ऑप्शन है, या तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स पे करे या ऑप्ट आउट, वो ईयर वाइज बेसिस वो कर सकता है। सो एक ऐसा असेसी जिसके पास पीजीबीपी नहीं है वो चूज कर सकता है एवरी ईयर। एक ऐसा असेसी जिसके पास पीजीबीपी है, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लगेगा। तुम्हें ऑप्ट आउट करना है तो टाइम पे रिटर्न फाइल करके ऑप्ट आउट कर लो, फिर हर साल ऑप्ट आउट लगेगा। एक बार चाहो तो ऑप्ट आउट विड्रॉ करके वापस डिफॉल्ट में आ सकते हो। अगर वापस डिफॉल्ट में आ गए तो फिर सब्सिक्वेंटली हमेशा डिफॉल्ट रेजिम ही लगने वाला है। अगर तुमने वो बिजनेस बंद कर दिया तो फिर तुम सेकंड कैटेगरी ऑफ असेसीज में कवर हो गए, फिर तुम्हें ईयरली बेसिस पे एग्जेम्पशन, ईयरली बेसिस पे ऑप्शन मिलते रहेगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑप्ट आउट रेजिम वाले असेसीज के लिए है। अगर तुम डिफॉल्ट रेजिम 115 बीएसी में टैक्स पे करते हो तो भाई कोई ऑल्टरनेट दूसरा मिनिमम टैक्स वैक्स गिनने की जरूरत नहीं है। ये डिफॉल्ट वाला जो टैक्स आया वही भर दो, मामला खत्म करो। इफ यू आर इन द ऑप्ट आउट रेजिम तभी जाके वो एएमटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। सो दिस इज योर 115 बीएसी। प्रॉपर्ली पढ़ के जाना। 115 बीएसी के क्वेश्चंस मैंने वो सुपर 35 में भी डाल के रखे हैं। प्लीज 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 उसको प्रैक्टिस करके जाना। इट इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी के 115 बीएसी तुम्हारे पेपर में होगा। चलो लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।